हे गाइस, दिस इज डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट पेडी, जहाँ पे हम आप लोग के लिए डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज़ और डेली बायोलॉजी लेक्चर्स लेके आ रहे हैं ताकि आने वाले नीट एग्ज़ाम से पहले आप लोग की थोड़ी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके और आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, स्पेशली अबाउट ऑल द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। यहाँ पे हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड विद digestion and absorption, that is the first chapter of human physiology. So without wasting much time, let's get started. So yesterday we discussed what digestion actually means. Digestion is the process of conversion of complex food substances into the simpler forms. That is the process of digestion carried out by the digestive system. Two processes of digestion occurs in digestive system: mechanical digestion and biochemical digestion. Mechanical digestion का example क्या था? Chewing of food in mouth and in churning effect in the stomach. That is the example of mechanical digestion. Biochemical digestion कैसे है? वो enzyme से है. Digestive system में क्या क्या है? We have the alimentary canal as well as the glands. So if we talk about the alimentary canal mostly there are organs starting from the mouth till the anus. Anterior opening is mouth and posterior opening is the anus. And glands की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे glands हैं starting from the oral cavity itself. So oral cavity में कौन सा glands है? salivary glands. और उसके अलावा हमारे पूरी लिस्ट है glands की जो मैंने आपको कल बताई थी. अगर हम teeth की बात करें, oral cavity में we have teeth and we have muscular tongue. So teeth का we have three types of dentition: thecodont dentition, heterodont dentition and diphyodont dentition. Thecodont क्या था? Tooth they are embedded in the jaw sockets, मतलब गड़े हुए हैं हमारे bones में, jaw के bones में हमारे teeth गड़े हुए. That is your thecodont type of dentition. Heterodont type of dentition, it means there are different types of teeth. जैसे कि humans have incisors, canines, premolars and molars. Diphyodont type of dentition मतलब we get two sets of teeth. Di means two. उसमें से we have milk teeth and we have permanent teeth. Coming to the dental formula, adult dental formula आपको बताया था 2123 है and temporary teeth यानी child का dental formula आपको बताया था 2102 है. कैसे आया था ये? 0 is because premolars हमारे सिर्फ permanent teeth आते हैं, there are no temporary premolars and there are two temporary molars and the third molar it comes directly as permanent. So बच्चों में the dental formula becomes 2102 and adult में dental formula becomes 2123. And आपको मैंने ये भी बताया था how you can calculate total number of teeth from dental formula. कैसे किया था? Dental formula is teeth given in one quadrant. Fine. So when we say 2123, dental formula is one quadrant में there are 2 plus 1 plus 2 plus 3 teeth. That is, we have 8 teeth in one quadrant. So 8 teeth in one quadrant, total teeth become 32. That is calculation of total number of teeth from dental formula. And finally we talked about tongue and pharynx. So tongue is a freely movable organ. 3-4 points बताए थे tongue के बारे में. Freely movable muscular organ attached to the floor of the cavity with help of frenulum. It has papillae and papillae has taste buds. Taste buds में मैंने बताया था areas of taste: bitter, sour, salty, sweet and umami. कहाँ पे है ये डायग्राम में आपको बताया था. आई होप एनसीईआरटी में आप ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड फॉलो कर रहे हो. एंड फाइनली फिर मैंने आपको बताया था pharynx के बारे में. We have a common pathway for food and air that is called as the pharynx. 3 पार्ट में डिवाइडेड है: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, and which opens, pharynx opens into trachea anteriorly and food pipe या esophagus posteriorly. So पीछे की तरफ esophagus है और सामने की तरफ हमारे पास trachea है. So that was everything that we have discussed till now, and starting from here we are moving forward with the remaining organs of the alimentary canal. So the interesting thing that starts over here is we have a common passage for food as well as air. Now the food as well as air का common passage है, मतलब ये कि there has to be some mechanism जिसकी वजह से खाना कभी भी respiratory pathway में ना जाए. Now अगर air आपका food passage में जाएगा there is no problem क्योंकि वो air पूरा आपका respiratory food passage से pass होकर निकल जाएगा. But if food it goes into airway का passage, if it goes into trachea and then into the respiratory passage,
then it creates a problem because it will result in choking and you will not get air. So to prevent this, we have something called as epiglottis. So what is epiglottis? Epiglottis, it is a cartilaginous flap. Again, highlight what I'm underlining. It is a cartilaginous flap that prevents entry of food into the glottis. And what is glottis? Glottis is the opening of the windpipe. And when is this prevention occurring? It is occurring when you're swallowing. So when you're swallowing food, let's change the color of our highlighter. So when you're swallowing the food, cartilaginous flap called epiglottis, it prevents entry of food into the glottis. What does glottis means? Glottis means opening. Now you can simply remember opening of the windpipe is called glottis, and glottis के ऊपर जो cartilaginous flap है, it is epiglottis. Now epiglottis ने आपका ट्रेकिया बंद किया. ट्रेकिया बंद करने के बाद खाना कहाँ गया? खाना गया आपका पूरा का पूरा esophagus में. Now what is esophagus? Esophagus is a thin long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm, and leads to a J-shaped stomach. Fine. So it passes posteriorly. So अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ पे डायग्राम की मदद से, so something like this happens. So ये हमारे दो ट्यूब्स होंगे. नेक में. फाइन. दिस इज esophagus and this is trachea. ट्रेकिया के यहाँ पास में ओपनिंग में वी हैव कार्टिलेजिनस फ्लैप एंड दिस इज योर ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया. जो राउंड करके दिखा रहा हूँ मैं, दैट इज योर ग्लॉटिस. फाइन. सो ग्लॉटिस इज देयर. यहाँ से आप जब भी ऊपर से फूड आएगा ना, ऊपर की अगर हम जाए तो दिस इज योर माउथ, देन वी हैव द नोज. इग्नोर द डायग्राम, फोकस ऑन द एपिग्लॉटिस वाला पार्ट. फाइन. राइट. सो जब भी आप खाना खाएंगे, यहाँ से जब भी फूड आएगा माउथ से, आई विल शो फूड विथ डिफरेंट कलर. सो जब भी खाना, दिस सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल. सो जब भी खाना आएगा, जब आप खाना स्वॉलो करोगे तो खाना क्या करेगा? या तो वो इस आगे वाले पाथवे में जा सकता है या तो वो पीछे वाले पाथवे में जा सकता है. पीछे वाले खाने को जाना पीछे वाले पाथवे में, इसोफेगस में, लेकिन वो जा आगे भी सकता है. सो हम करेंगे क्या? आप खाना जब भी हम स्वॉलो करेंगे तो खाना आपका सबसे पहले ऐसे जाते हुए वो एपिग्लॉटिस पे फॉल करेगा. दिस इज द कार्टिलेजिनस फ्लैप. तो खाना जब एपिग्लॉटिस में फॉल करता है, एपिग्लॉटिस क्या करेगा? आपके ट्रेकिया को क्लोज कर देगा. और जैसे ही ट्रेकिया क्लोज हो जाएगा, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ एपिग्लॉटिस, तो खाना जो है वो ऑटोमेटिकली आपका ईसोफेगस में चला जाएगा. फाइन. सो दैट इज हाउ योर एपिग्लॉटिस इज प्रोटेक्टिंग योर एयरवे. एंड टॉकिंग अबाउट एपिग्लॉटिस, मैंने क्या क्या चीज़ें याद रखने को बोला? इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट इट इज cartilaginous. Second, what is it? Second, it is above glottis. Epi matlab above. So when we are talking about epiglottis, it is above glottis. And what is the function? To prevent entry of food into the respiratory tract. Fine. उसके बाद मैंने बताया esophagus travels posteriorly. So अगर आप डायग्राम देखोगे, this is anterior, this is posterior. Anteriorly what we have? Anteriorly we have our windpipe, trachea, and posteriorly we have our esophagus. Fine. And what is the function of esophagus? Again, esophagus is a muscular organ. It has no digestive role. Remember, esophagus has no digestion, but esophagus carries out connection of the oral cavity with your stomach. So khana from oral cavity goes to stomach via esophagus. So esophagus का रोल क्या है फिर? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक. एंड वो कैसे करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस. इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं आपको. पेरिस्टाल्सिस होता क्या है? बेसिकली दीज आर द रिदमिक मूवमेंट्स. सो अगर आपको esophagus का पेरिस्टाल्सिस में दिखाऊं तो होता कैसे है ये? सो वी हैव अगेन अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन.
we have mouth, and we have stomach. फाइन. अब माउथ से खाना स्टमक तक लेके जाना है. दिस इज योर वर्क ऑफ ईसोफेगस. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि अगर खाना माउथ में आ जाएगा तो चुपचाप नीचे चला जाएगा. सो ये खाना जो है इसको स्टमक तक पहुंचाने के लिए देयर हैज़ टू बी सम मूवमेंट, तभी तो खाना जाएगा. तो मूवमेंट क्या होता है कि खाना जैसे ही माउथ से ईसोफेगस में घुसेगा, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रिलैक्स होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना यहाँ तक आएगा. उसके बाद क्या होगा, आगे वाला पार्ट रिलैक्स होगा एंड पीछे ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा. जब ऐसा होगा तो ये खाना सामने की तरफ पुश होगा. ऐसा कर करके जहाँ पे खाना पहुँचा उसके आगे वाला पार्ट रिलैक्स, उसके पीछे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पीछे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आगे वाला पार्ट रिलैक्स. ऐसे कर करके खाने को सामने की तरफ पुश किया जाता है. फाइन. एंड जैसे जैसे खाना सामने की तरफ पुश होता है वो स्टमक की तरफ जाता है. सो बेसिकली कुछ ऐसे वेव्स बनते हैं. और ये रेगुलर नहीं होता. जब सामने वाला, एक मिनट, ये थोड़ा सा ऐसे वेव्स बनेंगे आपके, या सो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे वाला पार्ट रिलैक्स हो रहा है, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे वाला पार्ट फिर से रिलैक्स हो रहा है, एंड खाना जो है वो आगे की तरफ मूव किए जा रहा है. फाइन. रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट खाने को आगे की तरफ मूव करेगा. सो दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस. फाइन. नाउ खाना कहाँ तक पहुंचा हमारा, खाना हमारा पहुंचा जे शेप्ड स्टमक तक. अब एक और चीज़ है कि हमेशा खाना स्टमक की तरफ सीधा गिरता नहीं रहता. सो देयर इज अ गार्ड ओवर हियर. What is that guarding called? That guarding is your sphincter. कहते क्या है उसको, उसको हम कहते हैं gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter क्या करता है ये? It guards the opening. Guards opening of stomach. So when it guards the opening of stomach, so होगा क्या, होगा ये कि सारी की सारी चीज़ें आपके स्टमक में सीधा नहीं आएंगी. तो जैसे आप ईसोफेगस के एंड में पहुंचोगे, आपका जो ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है स्टमक की ओपनिंग में वो खोलेगा और फिर खाना अंदर की तरफ आएगा. नाउ रिमेंबर दिस टर्म गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो कहीं यहाँ पे होगा, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग योर या in saving your esophagus from the gastric content of the stomach, gastric acids mostly. So what happens? Esophagus has epithelial lining. Now this is something not directly given in NCERT but it's an understood point. So अगर आप लोग को ये याद रखना है तो अपनी NCERT बुक्स में साइड साइड में लिख लीजिएगा. So basically क्या होता है, stomach has acids, राइट. लेकिन स्टमक को एसिड से बचाने के लिए इट हैज़ म्यूकस सेक्रीशन एंड ऑल डिफरेंट सेक्रीशंस एज वेल. नाउ ईसोफेगस डजंट हैज़ एसिड. व्हेन ईसोफेगस डजंट हैज़ एसिड, इफ़ ड्यू टू सम रीज़न अगर हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह है, अगर वो किसी गलती से ईसोफेगस की तरफ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, सो एपिथेलियम विल बी डैमेज्ड. फाइन. और अगर ये एपिथेलियम डैमेज हो गया तो क्या होगा, आपका ईसोफेगस पूरा का पूरा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड दिस इज समथिंग नोन एज बैरेट्स ईसोफेगस. ना ये बैरेट्स ईसोफेगस टर्म अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको ये याद रखना है कि आपको वहाँ पे स्फिंक्टर चाहिए क्यों, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों चाहिए. सो दो फंक्शन है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के. फर्स्ट, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर विल कंट्रोल द फूड एंटरिंग द स्टमक, control entry into stomach, and secondly gastroesophageal sphincter will prevent reflux. reflux मतलब उल्टा जाना, reflux of gastric content, gastric content. This is the second function of gastroesophageal sphincter. So gastroesophageal sphincter, it controls the
opening of the esophagus into the stomach. Now stomach, it is located in upper left portion of the abdominal cavity. Now what does upper left portion means? So if you look at this diagram, अगर आप abdomen को quadrants में divide कर दो, so this is your upper left. So your stomach is in upper left portion of abdominal cavity and it has three major parts. Three major parts में क्या क्या है? First you have the cardiac portion, then you have the fundic portion and then you have the pyloric portion. इसके अलावा there is one more which is called as the body of the stomach. Fine. So सबसे ऊपर वाला part is the fundus. Cardiac part आपको याद रखना है. What is the cardiac part? It is the part where the esophagus opens up. Then you have the pyloric part which is the end and you have the बीच में body of the stomach. Fine. So the last wala part is the pyloric part. We have the fundus, we have the cardiac and we have the pyloric part. Then stomach से अब आपका कहाँ जाएगा खाना? Stomach से आगे जाता है into a U-shaped duodenum, a long coil middle portion of jejunum and highly coiled ileum. And all these three, duodenum, jejunum and ileum, these are part of small intestine. So if you see stomach से आपका यू शेप्ड या सी शेप्ड आप इसको कह सकते हैं, या तो ये ऐसा यू दिखेगा आपको, अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो सी दिखेगा. सो इट गोज इनटू सी शेप्ड डियोडनम, देन हाईली कॉइल्ड जेजुनम एंड इलियम. फाइन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंट पार्ट्स हैज डिफरेंट फंक्शंस. टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट हो गया आपका. क्या क्या? डियोडनम, जेजुनम एंड आइलियम, है ना. अब इसमें डियोडनम पार्ट का क्या फंक्शन है? डियोडनम पार्ट मोस्टली हेल्प्स इन डाइजेशन. जेजुनम एंड आइलियम दे प्ले रोल इन एब्सॉर्प्शन. फाइन. डाइजेशन डियोडनम में होगा एंड एब्जॉर्प्शन आपका जेजुनम एंड आइलियम में होगा. सो व्हेन आई से एब्जॉर्प्शन जेजुनम एंड आइलियम में होगा तो आपका विलाई किस में होंगे सबसे ज़्यादा? दे विल बी मोस्टली अवेलेबल इन आइलियम एंड जेजुनम. इनकी विलाई का शेप भी डिफरेंट होता है इन आइलियम एंड जेजुनम, पर इतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर, डाइजेशन मोस्टली अकर्स इन डियोडनम, एब्जॉर्प्शन मोस्टली अकर्स इन जेजुनम एंड आइलियम. नाउ द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर. आइलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. सो अगेन, जैसे हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर था, कंट्रोल कर रहा था एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक, जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इट कंट्रोल्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आइलियम से द फूड विल गो इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ व्हाट डज लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ? लार्ज इंटेस्टाइन हैज योर सीकम, योर कोलॉन एंड योर रेक्टम. Now what is cecum? Cecum is a small blind sac which hosts symbiotic organisms. Now इससे क्वेश्चन आ चुका है, which of the following contains symbiotic organisms? Cecum, colon, appendix, ileum. So the correct answer is cecum. Cecum is a small blind sac. This is your cecum. Blind basically means कहीं पे कोई दूसरी ओपनिंग नहीं है इसकी. It's a blind sac which hosts some of the symbiotic organism. and इससे एक narrow finger like projection निकलता है, what we call as vermiform appendix. Narrow finger like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ. Now what does vestigial organ means? Vestigial organs means वो organs जो अब use में नहीं है, we do not use anymore. अगर वी डू नॉट यूज इट, वाई इज इट देयर? मैंने कहा एनी मोर, मतलब देयर वॉज वंस अ टाइम व्हेन दिस ऑर्गन माइट हैव बीन यूज्ड एंड इट माइट एक्चुअली हैव बीन बिगर देन व्हाट वी हैव राइट नाउ, बट अब ये ऑर्गन यूज नहीं होता, तो इट हैज बिकम वेरी छोटा एंड इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. इट अराइजेस फ्रॉम द सीकम. The cecum opens into the colon. Now colon has four parts again.
First is the ascending colon, then you have the transverse colon, then you have the descending colon, and finally you have the sigmoid colon. Fine. So NCERT it has been written, it is divided into 3 parts, but actually there are 4 parts. There is ascending, there is transverse, there is descending, and there is sigmoid colon. Then sigmoid colon, it opens into the rectum. What is the function of rectum? Rectum का function है storage of the feces. What is feces? जब आपने जो पूरा खाना खा लिया, digest हो गया, जो भी waste material रह गया, that is called as feces, and it opens outside through the anus. And what is anus? Anus is the posterior opening, right? So अगर आपको मैं बताऊं पूरा डायग्राम, तो ओरल कैविटी से हमने स्टार्ट किया. ओरल कैविटी की ओपनिंग इज माउथ. सबसे पहले ओरल कैविटी में 2 चीज़ें आई, वट ऑल? टीथ एंड टंग. ओरल कैविटी में जो खाना आया आपने उसको च्यू किया, वहाँ पे फिर आपने स्वॉलो किया. स्वॉलो करने के बाद आपके पास आया कॉमन पैसेज, दैट इज़ योर फैरिंग्स. कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. फैरिंग्स से पोस्टीरियरली आपका खाना गया ईसोफेगस. प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? एपिग्लॉटिस. ठीक है. ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज ग्लॉटिस, एंड उसके ऊपर बैठा है हमारा एपिग्लॉटिस. सो एपिग्लॉटिस ने खाना आपका ट्रेकिया में जाने नहीं दिया, ईसोफेगस में आ गया. ईसोफेगस से द फूड गोज टू स्टमक. स्टमक हैज़ 4 पार्ट्स, द फंडस, द आखिरी में पाइलोरस जहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट इज द कार्डियक. ईसोफेगस जहाँ पे ओपन हो रहा है, एंड देन यू हैव द बॉडी. फाइन. स्टमक से यहाँ पे द प्रोटेक्शन इज द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. फाइन. स्टमक से फिर खाना जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम, आइलियम, एंड यहाँ पे आपका है पाइलोरिक स्फिंक्टर. फाइन. उसके बाद गया खाना डेडुनम, डिओडिनम, जेजुनम एंड आइलियम में. आइलियम से फूड गोज इनटू द सीकम. सीकम हैज एन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. सीकम से ascending, transverse, descending and sigmoid colon, and finally rectum में जहाँ पे food store हुआ, and posterior opening of anus. So that is your entire alimentary canal. Now you need to remember this, and you need to remember कहाँ पे कौन से sphincter है that helps in regulating movement of the food. अभी तक मैंने आपको 2 sphincters के बारे में बताया. एक मैंने बताया gastroesophageal sphincter, दूसरा मैंने बताया pyloric sphincter. ऐसे और भी बहुत सारे sphincter है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा. Now, the wall of the alimentary canal has 4 layers. Alimentary canal जब मैं start कहता हूँ, I'm talking about the entire alimentary canal. So, entire alimentary canal is made up of 4 layers. So, 4 layers में क्या क्या आता है? सबसे बाहर की तरफ होता है आपका serosa, this is your out, and सबसे अंदर की तरफ होता है आपका mucosa, this is your in. ठीक है. In lumen basically means cavity. ठीक है. सो जो खाना आप खा रहे हैं, इट स्टेज इन ल्यूमेन एंड ट्रैवल्स इन फूड. सो सबसे अंदर की तरफ आपका है कैविटी, म्यूकोसा, एंड सबसे बाहर की तरफ है सिरोसा. नाउ हर एक लेयर का एक अपना फंक्शन है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा. एंड डिफरेंट पार्ट्स में इन लेयर्स का मॉडिफिकेशन भी है. वो भी क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा. So, serosa, it is the outermost layer made up of thin mesothelium. Now remember this mesothelium. What is mesothelium? Mesothelium is the epithelium of visceral organs. Visceral organs मतलब जो भी बॉडी के अंदर वाले organs हैं, they are visceral organs. और इनकी कवरिंग को हम बोलते हैं viscera. Fine. So visceral organs like lung is your visceral organ. GI tract is your visceral organ. Kidneys are your visceral organ. Pancreas is your visceral organ. All these are visceral organs. So covering of the visceral organ is known as mesothelium. So यहाँ पे आ गया एक और important question of NEET. What is the epithelium of visceral organ called? It is called as mesothelium. It is made up of mesothelium with some connective tissue. So basically serosa कुछ नहीं है. Serosa is just the covering of the organs of your alimentary canal. सिरोसा के बाद नेक्स्ट लेयर आता है आपका मस्क्यूलैरिस. नाउ मस्क्यूलैरिस इज फॉर्म्ड अप ऑफ स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. एंड ओब्लिक लेयर ऑफ मसल में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस. कहाँ पे हमारा सर्कुलर होता है, कहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है. सो यू हैव इनर, अंदर की तरफ सर्कुलर, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल.
फाइन. सो इफ यू सी, ये अंदर वाला लेयर इट इज सर्कुलर एंड बाहर वाला लेयर इट इज लॉन्गिट्यूडनल. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्कुलरिस लेयर में वी हैव स्मूथ मसल्स. फाइन. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आपको बताऊंगा. स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं. सो दीज आर स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स मतलब स्मूथ, इन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं करते, ये अपने आप काम करते रहते हैं. फाइन. सो दैट इज योर स्मूथ मसल. सो योर मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, मतलब आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल अपने आप काम कर रहा है. और मस्कुलरिस लेयर का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली इट इज योर पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस हो किस ले रहा है? वो मस्कुलरिस लेयर की वजह से हो रहा है. फाइन. मस्कुलरिस लेयर के बाद आ गया सब म्यूकोसा. सब मतलब नीचे. सो सबसे अंदर है म्यूकोसा, तो उसकी बाहर वाली लेयर क्या होगी? सब म्यूकोसा. फाइन. सो सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड अप ऑफ loose connective tissues containing nerves, blood, lymph vessels. In duodenum, glands might also be present in submucosa. Now, important part over here. So, different modifications are there along the entire alimentary canal, and the modification that we are talking about here is in duodenum. When the submucosa is containing your glands, you need to remember this because question आया है. Where are Brunner's gland present in duodenum? Those are सबम्यूकोसल ग्लैंड्स. इसके बारे में जो मैंने ग्लैंड का नाम लिया ब्रनर्स ग्लैंड, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. बट रिमेंबर डिओडेनम में सबम्यूकोसा में देयर आर ग्लैंड्स. एंड फाइनली कम्स योर द innermost layer, that is the mucosa. So it is the innermost layer lining the alimentary canal. It is the mucosa. Now this layer forms, obviously again modifications are there. So in stomach it has irregular folds or rugae, and in small intestine it has villi. Fine. What is the role of villi? आगे आपको आगे बताऊंगा मैं. Villi basically has a role in absorption of food. So rugae in stomach, it is again in mucosa. These are irregular folds of stomach. So अगर आप stomach देखोगे तो पूरे stomach में ऐसे ऐसे लंबे लंबे लाइंस होंगे. अगर आप stomach खोल के देखोगे तो फाइन. स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग में इसका फंक्शन क्या है? ऐसे रूगे का. अगेन इट इंक्रीजेस थोड़ा सा सरफेस एरिया एंड प्लस इट हेल्प्स इन द चर्निंग इफेक्ट ऑफ द स्टमक. Mucosal epithelium has goblet cells which secretes mucus and helps in lubrication. So again, goblet cells कहाँ पे है? Goblet cells are present in mucosa. Brunner's gland कहाँ पे? It is present in submucosa. किसमें? Small intestine, in duodenum में. Mucosa also forms glands in stomach, gastric glands, and crypts in between the villi in stomach, crypts of Libercun. This is an important term that you need to remember, crypts of Libercun. So basically क्या होता है आपका? These are your villi. Finger-like projections, fine. अब इस finger-like projection is fine, but बीच में there are crypts. This is a crypt बीच में, and crypts के along आपके cells होंगे, ऐसे cells होंगे. फाइन. ये जो क्रिप्ट्स के अलॉन्ग सेल्स होंगे ये आपके अगेन म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है. ये आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगे और यहाँ से आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आएंगे. इंटेस्टाइनल एंजाइम्स. फाइन. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं इनको. दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा. The cells lining of the villi produces numerous smaller projections called as the microvilli, which gives it a brush border appearance. So आपने मॉर्निंग में टूथब्रश देखा है. टूथब्रश जो आप ब्रश यूज़ करते हैं उसमें कितने सारे छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं. सो वैसे ही आपके विलाई में भी होंगे. ये तो विलाई हो गया. अब विलाई के होंगे सेल्स ऐसे. फाइन. और सारे सेल्स के अपने अपने ब्रिसल्स होंगे. सो अगर आप ग्रॉसली देखोगे तो पूरा विलाई ऐसा लगेगा ब्रिसल से कवर्ड है ना. इतना सब कुछ झंझट करने का मतलब क्या है? सिंपल एक प्लेन म्यूकोसा की लाइनिंग क्यों नहीं है जहाँ पे फूड ट्रैवल कर रहा है? इतना विलाय बनाना, फिर उसके ऊपर ब्रिसल्स बनाना, इतनी मेहनत क्यों की गई है ह्यूमन बॉडी में? सो द बेसिक पर्पज इज, इतनी मेहनत इसलिए की गई है ताकि इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया. एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया. So when the surface area increases, आपका ज़्यादा से ज़्यादा absorption होगा. So to improve the absorptive surface area, this मेहनत has been done.
These modifications they increase the surface area enormously. जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा surface area आपका बढ़ जाएगा. Villi is supplied with network of capillaries and large limb vessels called the lacteal. So अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं, बहुत सारी कैपिलरीज है विलाई में. क्यों है इतनी सारी कैपिलरीज? टू इंक्रीज फूड एब्जॉर्प्शन. सिंपल. जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होगा उतना ज़्यादा ब्लड एक्सचेंज होगा. जितना ज़्यादा ब्लड एक्सचेंज होगा उतनी आसान से आपका फूड एब्जॉर्ब होगा. एंड देयर आर लैक्टियल्स बीच में. दिस इज योर लैक्टियल. क्या है लैक्टियल? लैक्टियल एक बेसिकली लिम्फेटिक वेसल है हर विलाई के बीच में. फाइन. सो बिफोर मूविंग टू ग्लैंड्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पूरा पढ़ लिया. माउथ से आपका स्टार्ट होगा टिल योर एनस. माउथ से आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा ओरल कैविटी. ओरल कैविटी से आपका आएगा ईसोफेगस. फाइन. यहाँ पे बीच में क्या है आपका? ओरल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में यू हैव योर फैरिंग्स. फैरिंग्स में आपकी दो चीज़ है. ओपनिंग ऑफ, पहले तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फाइन. एंड ये खाना आपका ईसोफेगस में जाएगा, ट्रेकिया में नहीं जाएगा. ये कैसे पता चलेगा? यू हैव एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस का क्या रोल है? इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ईसोफेगस. फाइन. ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टमक. बीच में क्या आएगा? बीच में यू हैव गैस्ट्रो ईसोफेशियल स्फिंक्टर. व्हाट डू यू हैव? यू हैव गैस्ट्रो ईसोफेशियल स्फिंक्टर. क्या काम है गैस्ट्रो ईसोफेशियल स्फिंक्टर का? इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड until and unless stomach wants food, and secondly it prevents reflux of food. उसके बाद आएगा आपका small intestine. Small intestine has 3 parts. कौन कौन से 3 पार्ट है? You have the duodenum, you have the jejunum and you have the ileum. इसमें से duodenum वाला पार्ट इज द डाइजेस्टिव पार्ट. जेजुनम एंड आइलियम में मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है. एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? पाइलोरिक स्फिंक्टर. फाइन. उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में वी हैव सबसे पहले सीकम, जहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगा, इलियम खुलेगा. देन यहाँ पे भी इलियम और सीकम के बीच में वी हैव इलियोसीकल जंक्शन. फाइन. वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है. ठीक है. सो सीकम आएगा. सीकम के बाद क्या आएगा आपका? कोलॉन. कोलॉन के 4 पार्ट है अगेन. असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलॉन. एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन. फाइनली रेक्टम. फाइनली रेक्टम आएगा. एंड रेक्टम ओपन्स टू द आउटर वर्ल्ड थ्रू एनस. और एनस से फीशीज बाहर निकलेंगी. यहाँ पे माउथ में फूड अंदर जाएगा. फाइन. नाउ इसके अलावा हमने पढ़ा 4 लेयर्स: सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. जिसमें से सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन म्यूकोसा में है. म्यूकोसा ये आपका विलाय बना रहा है. म्यूकोसा के गॉबलेट सेल्स ये आपके म्यूकस सेक्रीट कर रहे हैं. म्यूकोसा ही में आपका रूगे है. सब म्यूकोसा में बेसिकली क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें वेसल्स हैं. एंड सब म्यूकोसा का क्या रोल है आपका? बेसिकली ब्लड सप्लाई और नर्वस सप्लाई प्रोवाइड करेगा. सब म्यूकोसा में आपको याद रखना है अबाउट द ब्रनर्स ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन ड्यूोडेनम. मस्क्यूलरिस की क्या चीज़ है? मस्क्यूलरिस का आपका मसल का लेयर है दैट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्सिस. फाइन. मस्क्यूलरिस लेयर में भी आपको याद रखना है चर्निंग इफेक्ट, पेरिस्टाल्सिस सब मस्क्यूलरिस का रोल है. एंड यूजुअली क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, सर्कुलर लेयर है. एंड वी हैव अ transverse layer of muscles, oblique layer of muscles rather. So you have longitudinal, you have circular, and you have oblique layer of muscles. This oblique layer is present only in stomach. Fine. And सबसे बाहर is serosa. Serosa is nothing but the covering, and covering of visceral organ is known as mesothelium. What is it called? It is called as mesothelium.
So that is your entire alimentary tract. Now the glands of alimentary tract are remaining, but today's 30 minutes are finished. So we are covering the glands of the alimentary canal and the digestion process in the next video. Till then guys, all the best, keep studying hard. यहाँ पे आपका पूरा का पूरा हम बायोलॉजी का प्रिपरेशन कराएंगे. अगर आपको हमारी बायोलॉजी की वीडियोस पसंद आ रही हो, if you are finding them helpful, do share it with your friends and other NEET aspirants as well. See you guys again tomorrow, and again starting का थोड़ा सा time we'll revise what we have studied in this video, and then we'll start further with the digestive glands. So I'll see you guys again in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and don't forget to subscribe. This is Dr. Shettung here. I'll see you guys in my next video. Bye bye.